Hello students, today we will discuss Cohen Sutherland 9 clipping algorithm. In this, we cover topics what is 9 clipping, what is Cohen Sutherland 9 clipping, and we will see an example of Cohen Sutherland 9 clipping algorithm. Let's see what is clipping. So clipping is any procedure that identifies those portions of a picture that are either inside or outside of a specified region of space is referred to as clipping algorithm or simply clipping. The region against which an object is to be clipped is called a clip window. So what is clipping is that we have a picture and we have to select a portion of that picture for displaying. तो हमारे पास एक पिक्चर है, हमें उस पिक्चर के एक पोर्शन को सिलेक्ट करना है डिस्प्ले करने के लिए. That is we called clipping. And the window for which we are using for clipping is called clip window. So if you see the figure here, this is a rectangular window and this is we called a clip window. Okay, and there are certain lines are there in this picture, and the objective is we have to discard those lines that are outside this window. इस विंडो के बाहर जितनी भी लाइन्स हैं उन सबको हमें डिस्कार्ड करना है और वो लाइन्स और पोर्शंस ऑफ लाइन्स जो इस विंडो के अंदर हैं उन्हें हमें सेलेक्ट करना है डिस्प्ले करने के लिए. तो आफ्टर क्लिपिंग वी गेट द फाइनल पिक्चर एज दिस वन. इफ यू सी दैट P1 and P2 is inside this window, it will be kept for displaying. If you see the P5 and P6, the portion from here to here will be kept and the rest from P5 to that point, that portion will be discarded here. Okay. The same way, if you see the 9P7 to P8, the portion that is inside the window has kept for displaying and the rest is discarded. This line is completely outside, the whole line will be discarded, and the same will be with P3 and P4. So this is what the concept of clipping is, that whatever inside this window we have to kept for displaying, and whatever outside the window that has to be discarded, and this is what called clipping. And this window, rectangular shape window, we called a clip window. Okay. Now Cohen Sutherland 9 clipping algorithm. This algorithm is used for clipping only for lines. Now in this what happens, every line and point in a picture is assigned a 4-digit binary code called a region code that identifies the location of point relative to the boundaries of the clipping rectangle. So this is your screen is there. Okay, the whole screen is divided into regions and there are 9 regions. Okay, these regions have been assigned a region code. Here you see that 1010, this is the region code. So there are 9 regions and every region has assigned a region code. These region codes defines that कि ये कौन सा रीजन है, ये रीजन इस विंडो के किस पार्ट में है. ओके, एंड दिस रीजन whose region code is 0000, दिस इज योर क्लिप विंडो. यानी इस रीजन के अंदर वटेवर होगा उसको हमें मेंटेन करना है और इसके बाहर जो होगा हमें डिस्कार्ड करना है. तो योर क्लिप विंडो इज डिफाइंड बाय द रीजन with region code 0000. Okay, now let's see how these region codes have been assigned. Okay, तो इनकी जो नंबरिंग है, दे आर दिस रीजन कोड इज ए 4-bit रीजन कोड. और ये बिट्स कैसे असाइन किए गए हैं? बिट 1 इज लेफ्ट, हम यहाँ से राइट से लेफ्ट चल रहे हैं. जो फर्स्ट बिट है इट इज़ फॉर लेफ्ट, सेकेंड बिट है इट इज़ फॉर राइट, थर्ड बिट है इट इज़ फॉर बिलो एंड द फोर्थ बिट है इट इज़ फॉर एबव. तो कोई भी रीजन जो होगा वो इस क्लिप विंडो को अगर हम देखें, इस क्लिप विंडो के जो डायमेंशंस क्या हैं, एक्स मिन एक्स मैक्स, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हमने एक्स मिन कहा है. दिस इज द एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द क्लिप विंडो जिसे एक्स मैक्स कहा है. दिस इज द स्टार्टिंग वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द विंडो जिसे वाई मिन कहा है, एंड दिस इज द वाई मैक्स. तो दिस इज योर क्लिप विंडो. अब ये देखना है कि ये पोर्शन क्लिप विंडो के ऊपर है, कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा राइट में है, कौन सा बिलो है. इट इज़ डिसाइडेड बाय द रीजन कोड्स. तो सब इफ़ यू सी दिस रीजन कोड, ओके, तो इट इज़ नॉट एट द लेफ्ट. लेफ्ट क्या है? इस लाइन के इधर जो कुछ भी है वो लेफ्ट है. इस लाइन एक्स मैक्स के राइट में जो है वो राइट है. वाई मैक्स के ऊपर जो कुछ भी है वो एबव है और वाई मिन के नीचे जो कुछ भी है वो बिलो है. ओके, तो इसी अकॉर्डिंगली ये बिट्स असाइन किए गए हैं. इफ़ यू लुक एट दिस
रीजन, तो दिस रीजन इज लेफ्ट में है, तो इसका जो लेफ्ट बिट है इट इज सेट टू 1. तो 1 इज इंडिकेटिंग दैट दिस रीजन इज एट द लेफ्ट ऑफ द क्लिप विंडो. नाउ द सेकेंड बिट है इट इज फॉर राइट, तो सिंस राइट इस साइड आ रहा है तो इट इज 0. नाउ बिलो, तो दिस रीजन इज नॉट बिलो एक्स वाई मीन, hence it is 0. And bit 4 is above, so this region is above y max, hence it is 1. The region code is 1001. It means this region this is left of the clip window and above of the clip window. Same way if you look at this one, so its fourth bit is 1, that is for above bit. It means this region is above the clip window. This way we assign the region codes to all the regions, and the clip window region code is 0000. Okay, in Cohen Sutherland line clipping we divide the display screen in region codes, and there will be 9 regions. Okay, and these regions are assigned a 4-bit region code depending upon the location of the regions according to the clip window, and the clip window is decided or represented by the region code 0000. Okay, now let's see how if 9 is there, how we can decide कि उस 9 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो किस रीजन में लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें इस करना क्या है कि जो भी हमें 9 दी गई उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनका रीजन कोड आइडेंटिफाई करना है कि वो एंड पॉइंट किस रीजन को बिलोंग करते हैं. तो हाउ वी कैन डिसाइड दैट. ओके, सपोज इफ यू टेक द एंड पॉइंट ई, इफ इस एंड पॉइंट ई को अगर आप देखें तो इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसको यूज़ करना है, और इसका जो बिट 1 है ये सेट टू 1 होगा, यानी वेदर दिस इज लेफ्ट ऑफ द क्लिप विंडो और नॉट. दिस इज योर क्लिप विंडो. ओके, दिस इज योर क्लिप विंडो. इसका लेफ्ट में है कि नहीं है. तो हाउ विल वी टेस्ट कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर लेस देन है एक्स डब्ल्यू मीन, तो इट मीन्स दैट एंड पॉइंट इज बिलो द क्लिप विंडो. दिस इज योर एक्स मीन. ओके, so this is not less than x mean, it means the bit 1 is set to 0. Bit 2 is for setting the right bit, whether it is 1 or not. It will decided x is greater than xw max. This is your xw max. अगर इससे बड़ा है यानी पॉइंट इज लाइंग दैट, जिससे h का है, h का x कोऑर्डिनेट xw max विंडो के जो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट है उससे ज़्यादा है. दैट्स वाई इट्स राइट बिट इज सेट टू 1. ओके, for this it will be 0. Bit 3 is for whether the end point is below the clip window or not. It will be decided whether y is less than y mean. This is your y mean. अगर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस y मीन से छोटा है, इसका मतलब वो इस बाउंड्री के नीचे होगा. इट मीन्स इट इज बिलो द क्लिप विंडो. एंड द सेम वे इट इज अबव और नॉट, इट विल डिसाइडेड बाई वेदर y इज सॉरी यहाँ पे जो लेस देन है इट विल बी ग्रेटर देन. देयर इज ए मिस्टेक इज हियर. इफ y इज ग्रेटर देन y max, तो दिस इज योर y max, एंड y इज ग्रेटर देन दिस, इट विल बी 1. तो फॉर E एंड C बोथ एंड पॉइंट्स द फोर्थ बिट फॉर दीज एंड पॉइंट्स विल बी सेट टू 1, बिकॉज E का जो y कोऑर्डिनेट है वो y max से बड़ा है. सेम वे C का y कोऑर्डिनेट है y का max से बड़ा है. तो अगर आप C का देखें तो ये 1001. इट मीन्स C का जो y वैल्यू है y मैक्स से बड़ी है, इट मीन्स ये अबव है. C का जो x कोऑर्डिनेट है वो x मीन से छोटा है, इट मीन्स वो लेफ्ट में है. और जो C का जो x कोऑर्डिनेट है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन x मैक्स, इट मीन्स इट इज़ 0, राइट में नहीं है. और जो y की वैल्यू है वो y मीन से छोटी नहीं है, इट मीन्स वो बिलो भी नहीं है. इन दिस वे वी कैन असाइन द रीजन कोड्स टू द पॉइंट्स ऑफ द लाइन. ओके, तो इस तरीके से इस एल्गोरिथम में जितने भी हमें लाइन्स मिलेंगे उनके हर एंड पॉइंट्स का हमें इसी तरीके से रीजन कोड आइडेंटिफाई करना है, असाइन करना है, यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड द बाउंड्री ऑफ द क्लिप विंडो. वी कैन असाइन द रीजन कोड टू द पॉइंट्स. जो एंड पॉइंट है वो किस रीजन कोड में लाई कर रहा है, किस रीजन कोड को बिलोंग कर रहा है. ओके, एक बार जो हमने ये काम कर लिया कि हमने सारे पॉइंट्स के रीजन कोड्स हमने असाइन कर दिए, नाउ वी हैव टू चेक. हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं.
या तो 9 है वो पूरा का पूरा इस क्लिप विंडो के अंदर होगा जैसे कि P5 P6 है, या जो 9 है वो पूरा का पूरा इस क्लिप विंडो के बाहर होगा जो पूरा डिस्कार्ड होगा जैसे कि P3 एंड P4 है। या तीसरा केस है कि वो जो 9 है वो इस कुछ पोर्शन उसका अंदर होगा और कुछ पोर्शन उसका क्लिप विंडो के बाहर होगा जैसे P1 से P2 है। तो देयर आर 3 केसेस। इन तीनों केसेस को कैसे हम चेक करेंगे? तो एनी 9 दैट आर कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन द विंडो बाउंड्रीज हैव ए रीजन कोड ऑफ 0000 फॉर बोथ एंड पॉइंट्स। अगर कोई 9 है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स का रीजन कोड 0000 आता है, इसका मतलब वो 9 कंप्लीटली इनसाइड द क्लिप विंडो होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो P5 को अगर हम रीजन कोड असाइन करेंगे तो वो आएगा 0000, ओके, और P6 का रीजन कोड आएगा 0000। तो हेंस बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द 9 have region code 0000, hence this 9 is completely inside the clip window। तो इसको हमें मेंटेन रखना है for displaying, okay। So this way we can decide whether the 9 is completely inside the window or not। Any 9s that have a 1 in the same bit position in the region codes for each endpoint are completely outside the clipping rectangle। A method that can be used to test 9s for total clipping is to perform the logical AND operation with both region codes। If the result is not 0000, the 9 is completely outside the clipping region। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई 9 completely outside है? तो हमें देखना है कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके जो रीजन कोड है उसमें हमें ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी सेम बिट पोजीशन पे 1 आ रहा है। अगर सेम बिट पोजीशन पे 1 है, ओके, इसका मतलब वो 9 कंप्लीटली आउटसाइड द क्लिप विंडो है, ओके। सपोज करिए कि 2 पॉइंट्स हैं एंड उन दोनों पॉइंट्स के जो फर्स्ट बिट है वो वहाँ पे 1 है, इसका मतलब जो दोनों 9s हैं वो कंप्लीटली लेफ्ट ऑफ द क्लिप विंडो होंगी और वो पूरी तरह डिस्कार्ड होंगी, ओके। तो हमें ये चेक करना है कि जो 9 है उनके जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उनका जो रीजन कोड है उसमें कोई ऐसी बिट पोजीशन है जो जहाँ पे उस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। इफ़ द बिट पोजीशन ऑफ 2 एंड पॉइंट्स इज 1, इट मीन्स द 9 इज कम्प्लीटली आउटसाइड द क्लिप विंडो। और उसको टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों रीजन कोड्स का हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, और लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर रिजल्ट 0000 आ जाता है तो वो 9 कम्प्लीटली आउटसाइड है, और अगर 0000 नहीं आता है इसका मतलब वो 9 इंटरसेक्ट कर रही है, उसका कुछ पोर्शन इनसाइड द क्लिप विंडो है और कुछ पोर्शन आउटसाइड द क्लिप विंडो है, ओके। तो 9s दैट कैनॉट बी आइडेंटिफाइड एज कम्प्लीटली इनसाइड और कम्प्लीटली आउटसाइड ए क्लिप विंडो बाय दीज टेस्ट्स आर चेक्ड फॉर इंटरसेक्शन विद द विंडो बाउंड्री। तो जो 9s कम्प्लीटली इनसाइड है तो पूरी तरह से हमें इनसाइड है, जो आउटसाइड है उनको भी चेक नहीं करना है। वो 9 जिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कम्प्लीटली इनसाइड है या कम्प्लीटली आउटसाइड है, तो उन 9s को हमें चेक करना है कि वो 9s इस क्लिप विंडो को किस किस पोजीशंस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। जैसे P1 एंड P2 है, इस 9 को जो हम चेक करेंगे तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स 0000 नहीं है, इसमें कम्प्लीटली इनसाइड नहीं है। इसके दोनों एंड पॉइंट्स का जो रीजन कोड है उसका अगर हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट 0000 नहीं आएगा, इसका मतलब ये 9 कम्प्लीटली आउटसाइड भी नहीं है। इसका मतलब हम थर्ड केस पे आ जाएंगे कि दिस 9 इज इंटरसेक्टिंग द क्लिप विंडो एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद क्लिप विंडो ऑफ दिस 9। तो इसको हम देखेंगे तो दिस 9 इज इंटरसेक्टिंग एट P1 डैश, ओके, यहाँ इस जगह पर इंटरसेक्ट करें जिसको मैंने कहा P1 डैश। तो वी हैव टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है। सेम वे P2 है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट P2 डबल डैश, तो वी हैव टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट पोजीशन। आफ्टर फाइंडिंग दिस कोऑर्डिनेट पोजीशन वी विल डिस्कार्ड द 9 फ्रॉम P2 to P2 डबल डैश एंड P1 to P1 डैश and keep the 9 from P1 dash to P2 double dash, and hence P1 dash to P2 double dash will be used for displaying the 9. So this is when the 9 is not decided whether it is completely inside or outside, then we have to go for to check where the 9 is intersecting the clip window, okay।
नाउ द थर्ड केस है, उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे कि वो 9 क्निप विंडो को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। द इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद द क्निपिंग बाउंड्री कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द 9 इक्वेशन। तो यहाँ पे हम स्लोप इंटरसेप्ट 9 इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो फॉर्मूला है दैट विल बी यूज्ड फॉर अ 9 विद एंड कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2। दे कोऑर्डिनेट of intersection points with a vertical boundary can be obtained with the calculation this way। तो अगर 9 इंटरसेक्ट कर रही है तो दो ऑप्शन है, या तो 9 वर्टिकल बाउंड्री को इंटरसेक्ट करेगी या हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो अगर द 9 इज इंटरसेक्टिंग एट द वर्टिकल बाउंड्री तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, या तो एक्स डब्ल्यू मिन होगा या एक्स मैक्स होगा, इन दोनों में से होगा। इन दो ही वर्टिकल लाइन्स हैं, दैट इज एक्स मिन और एक्स मैक्स। And y, how to calculate the y coordinate? It is equal to y1 plus mx minus x1. Using this equation you calculate y. So y1 is the coordinate of the point, m is the slope. We can calculate it by y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, x is the either x min होगा या x max होगा, ये डिपेंडिंग है कि किस बाउंड्री को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर लेफ्ट वर्टिकल 9 को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वी विल यूज एक्स डब्ल्यू मिन, अगर वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वी विल यूज एक्स डब्ल्यू मैक्स। ओके, एंड x1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यूजिंग दिस इक्वेशन वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 9 विद द वर्टिकल बाउंड्री, यानी हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द वर्टिकल बाउंड्री। अब हॉरिजॉन्टल बाउंड्री पे अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x is equal to x1 plus y minus y1 upon m। तो इट इज हिटिंग द हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। द हॉरिजॉन्टल बाउंड्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो y की वैल्यू या तो y मिन होगी या y मैक्स होगी, डिपेंडिंग कि वो लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कि अपर हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। x1 इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द 9, y will be either the y min or y max, whatever। y1 is the coordinate of the point, m is the slope, and we can find the x intersection point with the horizontal boundary। So in this way we can calculate the intersection points of the 9 with the clip window। Okay, so using all that thing, if you apply the example, the algorithm, so there is a let ABCD be the rectangular window with A 20-20, B 90-20, C 90-70 एंड D 20-70। तो आपको एक क्लिप विंडो दी गई है, ए बी सी डी, और उसके आपको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दिस इज योर क्लिप विंडो ए बी सी डी। ओके, नाउ यूज कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम टू क्लिप 9 P1 P2 विद P1 10-30 एंड P2 80-90। एक 9 दी गई है P1 P2 जिसके एंड पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और आपको ये फाइंड आउट करना है वेदर the 9 is completely inside or completely outside, or it is intersecting the window or not। okay, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि वी हैव टू फाइंड द रीजन कोड ऑफ एंड पॉइंट्स। P1 और P2 के हमें रीजन कोड्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो वी कैन फाइंड आउट P1 है 0-0-1 एंड P2 है 1-0-0-0। तो निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको P1 का निकालना है कि रीजन कोड क्या है, तो P1 की x वैल्यू को कंपेयर करेंगे x min से। व्हाट इज x min? x min इज 20, x max क्या है 90, y min क्या है 20 और y max क्या है 70। आप देखते हैं 70 एंड 70, दिस इज योर y max। इधर क्या है 20 एंड 20, तो y min क्या है आपका 20 है। इधर देखेंगे तो 20 और 20 है, दिस इज योर x min, और ये 90-90, दिस इज योर x max। तो अगर आप P1 का अगर रीजन कोड निकालना है, ओके, तो फर्स्ट बिट इज फॉर लेफ्ट के लिए होती है, तो उसको चेक करना है कि वेदर दिस 10 इज लेस देन 20 और नॉट, इट इज लेस देन, तो रीजन को, तो लेफ्ट बिट इज सेट टू 1, यू कैन सी दैट 1। नाउ राइट बिट चेक करना है कि वेदर 10 इज ग्रेटर देन 90 और नॉट, इट इज फॉल्स, हेंस इट इज राइट बिट इज 0। नाउ द y कोऑर्डिनेट इज 30, वेदर 30 इज स्मॉलर देन 20 और नॉट, दैट इज 30 इज स्मॉलर देन y min और नॉट, इसके नीचे है कि नहीं है, तो y min है 20, तो 30
20 से स्मॉलर नहीं है, इट मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स, तो इट इज़ नॉट बिलो, इट इज़ 0. And then 30 is greater than 70 or not, it is not greater than 70, so it is also not above the knip window, hence it is also 0. You can see that the region code of P1 is 0001. The same way you can calculate P2 as 10000. So this is the first point, you have to calculate the region code for the end points of the line. Second is you have to decide whether the line is completely inside, outside or intersecting the knip window. तो अगर completely inside होने के लिए दोनों ही एंड पॉइंट्स का रीजन कोड 0000 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो 9 इज नॉट कम्प्लीटली इनसाइड. फॉर कम्प्लीटली आउटसाइड यू हैव टू टेक द लॉजिकल एंड ऑपरेशन. इसका दोनों पॉइंट्स का लॉजिकल एंड लेंगे, या आप ये देख भी सकते हैं कि कोई ऐसी बिट पोजीशन है जहाँ पे दोनों जगह पे 1 हो, तो ये दिस इज द फर्स्ट बिट पोजीशन, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है. दिस इज द सेकंड बिट पोजीशन, दोनों 0 हैं, 1 नहीं है, तो हमें वो बिट पोजीशन निकालनी है जहाँ पे दोनों वैल्यू 1 हो. तो इसका मतलब वो जो 9 है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है, या इन दोनों पॉइंट्स का आप लॉजिकल एंड लेंगे, तो लॉजिकल एंड ऑफ P1 एंड P2 लेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 0000. ओके, तो अगर ये 0000 नहीं आता तब ये कम्प्लीटली आउटसाइड होती. अगर 0000 आ रहा है, इसका मतलब द 9 इज इंटरसेक्टिंग द knip window. तो P1 लॉजिकल एंड P2 इज 0000. इट मीन्स इट इज नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, इट इज इंटरसेक्टिंग at some point at knip window. Okay, so how to find the intersection points? Okay, so first of all we have to find P1 dash and then we calculate P2 dash. So here the 9 is intersecting the vertical line. Okay, this is a vertical line, this is a vertical line, this is the horizontal line, this is the horizontal line. इस vertical line को जब इंटरसेक्ट करेगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 20 होगा, ये पूरा 20 है. ओके, we have to calculate what is the value of y coordinate. So using the equation y is equal to y1 plus m x minus x1. ओके, तो हमें स्लोप निकालना होगा. पहले स्लोप है 90 माइनस 30, P1 P2 का स्लोप निकाल देंगे, 90 माइनस 30 दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 80 माइनस 10, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.85. Now you have to find the y coordinate of point P1 using the equation y1 dash is equal to y1 plus m x minus x1. y1 is your what, 30 is there. ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 is your 30. ओके, m is your 0.85, x is your this is the 20 that is x min और x max, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे x min यूज़ किया है, this is 20 और x1 is your 10. This comes out to be 38.5. मीन्स दिस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा P1 डैश का वो है 38.5. तो P1 डैश क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट आपका 20 है, y क्या हो गया 38.5. ओके, द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट द हेयर. तो यहाँ दिस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, तो यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है इसका y कोऑर्डिनेट 70 है और x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है. व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ P2 पॉइंट. तो x2 डैश दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ P2 डैश इज x2 प्लस y माइनस y2 अपॉन m. जो ने पिछली स्लाइड में फार्मूला देखा है वही यूज़ कर रहे हैं. तो x2 क्या है आपका, दिस इज 80. y क्या है, तो वी आर यूजिंग द y मैक्स. ओके, तो यहाँ पे y मैक्स क्या है आपका 70 माइनस y2 इज योर 90 अपॉन स्लोप 0.85. दिस कम्स आउट टू 56.5. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P2 डैश पॉइंट इज 56.5. तो P2 डैश क्या हो गया 56.5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 70. So from this point P1 dash to P2 dash, that point will be kept for displaying and the rest of the portion of the line will be discarded. Okay, so this is the way we can apply Cohen Sutherland algorithm to decide which portions of lines will be clipped for displaying and which portions of lines will be discarded. Okay, in this video we have seen what is clipping, what is Cohen Sutherland line clipping algorithm, and at the last we seen an example how we can apply Cohen Sutherland algorithm to clip a line. Okay, please like, share and subscribe the channel. Thank you.